Good evening, students. Now listen carefully. Today we are going to start the same lecture number 7. Topic is light, reflection and refractions. Till the lecture 6, we already covered the first part, that is reflection. We already covered. Yeah. Now we have to focus on the refraction. What is the refractions? We have to discuss today, and we'll discuss about that were some laws, some properties. We'll discuss slowly what you have to learn today. First one, what is the refraction of light? The light is passing from the one medium to the other medium, transparent medium. Okay, while traveling from one medium to other medium, it changes its path. It is basically. What is the reason for that? That one also we will discuss. Okay. Refractive index, it is Snell's law. It's the ratios of two different velocities, two different wavelengths, as well as the two different angle of incidence and refractions. Laws of refractions, same also we have to discuss that one also. And optical densities and transmitting media, that one we will discuss slowly one by one. From figure also we will get clear idea. Here, refraction of light, if you are finding that from observing from the figure, actually from that figures, if you are finding that the pencil, it is not a straight, you are finding some difference that it will be looking like it will be broken one. Why is it we are able to see that? Like because of that one refraction. Here also, if you are finding that the person is there inside that liquid, actually it is not it is not a water. It much difference is there. The face here is shifting from this particular distance. Because of what? The same refraction. Here also the same, that the cat, if you are finding the particular shape, but here if in liquid, the shape is going to increase. Means we can say from the refractions we are able to see the position of object will be going to change. Sorry, position of image is going to change. Object is remain same, but position of image is shifting from somewhere. Now here observing that this is a object, okay, but position of image is going to shift here. Here also the position size also going to shift. Here smaller one. Now you are finding that the bigger one, here the small eyes, and here the eyes, if you are finding that bigger one, means size also going to change as well as the position also going to change. That two factors we have to discuss slowly one by one in the topic of refraction of light. Here given the same again, here the person is there, and here if the face is shifting because of refractions. Actually given here the much difference is there, but it is not like that, but just it is why are they showing, just it will be shifting from the one place to the other place. We will discuss one by one slowly now. The terms related to the refraction, how first we'll discuss about the what is the refraction terms. We'll discuss with the simple glass slab or any transparent medium. Okay, now let me consider this is a transparent medium. Actually generally we are conducting in practical also. Let me consider it is transparent medium, any transparent medium. Let me consider it is glass, for it is easy to, and it is rectangular glass slab. Okay, just I am taking taking the one perpendicular, that is known as a normal. This is considered as a normal. Now the ray is coming from the source is known as the incident ray. Okay, that suppose this is the source, and from the source this ray is coming. You consider this ray. Now what will happen here? Now the ray is coming here. The angle of the incident ray. This is incident ray. The angle of incident ray and normal is known as the angle of incidence. Okay, this is normal. Now here this is the air medium or rare medium also we can use, and this is suppose glass medium 1 or medium 2 glass. If we consider this glass is the denser medium. Denser का मतलब क्या होता है? रेयर का मतलब क्या है? जो खुला खुला है. डेंसर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है उसके वेरी टाइटली बाउंडेड. ओके, कंपेरेटिवली द ग्लास इज अ डेंसर मीडियम. लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड इज मैक्सिमम इन अ वैक्यूम. जहाँ पे तुम्हारा ऑब्स्टेकल्स नहीं होते वहाँ पे लाइट क्या होता है? मैक्सिमम ट्रैवल करता है ना. जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है वहाँ पे स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. जैसे कि आप है ना
रोड स्मूथ है तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। रोड में ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम वे लाइट का भी वैसे होता है, जब जब लाइट क्या तुम्हारा जब एयर मीडियम एयर में जाएगा या वैक्यूम में जाएगा, कोई भी मीडियम में होगा, जब लाइट की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जैसे ही तुम्हारा डेंस में आता है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या होता है अभी देखिए, तो ये लेट कंसीडर दिस नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो क्या होता है अभी लाइट सीधे जाएगा क्या, नहीं, तो उसको क्या होगा, कन्वीनियंट पाथ चूज करेगा वो। तो क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट पाथ क्या करेगा, उसको तो बाहर तो निकलना है, तो फिर ऐसा निकल रहा है क्या, वो ऐसा निकल रहा है क्या, नहीं, तो क्या करेगा, कन्वीनियंट पैटर्न शॉर्टकट अपना रहा है वो, क्या करेगा, इट विल गो फ्रॉम दैट शॉर्टकट, देन बिकॉज ऑफ डेंस इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ आ रहा है वो, नॉर्मल के तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि शॉर्टकट हो गया, ऐसे इतना तो लंबा जाना पड़ेगा उसे, तो क्या करेगा वो, ये पाथ चूज करेगा। क्योंकि क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब पता है आपको, क्यों क्यों शॉर्टकट पाथ चूज कर रहा है वो, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है पता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा सेम, तो उसको उतने ही समय में बाहर निकलना है, तो क्या करेगा वो, लंबा गए तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए क्या करेगा, शॉर्टकट पाथ, यानी उसका टाइम पीरियड उतना ही आना चाहिए उसको। यहाँ से जो स्पीड में जा रहा था तो उतने ही टाइम पीरियड में उसको उतना रास्ता कवर करना है। इसलिए क्या करेगा वो, शॉर्टकट में फ्रीक्वेंसी में चेंज उसको लाना नहीं चाहता है वो, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो फिर यहाँ पे आने के बाद में ये इसकी सपोज नॉर्मल लेट इज एन एंड दिस इज नॉर्मल ईवीएम। तो फिर से क्या होगा, ये डेंसर से फिर राइट क्या है तुम्हारा निकल जा रहा है, किस में निकल जा रहा है, तुम्हारा रियर पार्ट में आ रहा है। तो फिर क्या हो गया, वो टाइम पे क्या हो जाएगा, इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ऐसे जाने के बजाय क्या करेगा वो, फिर से मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी आप तो पहली की लाइन निकालते हैं आप, सपोज ये है ना, और ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका लैटरल शिफ्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका लाइट का जो वेव आपने देखे ना, फोटो देखे ना, तो यहाँ से पर्सन वहां पे गया तो कितना शिफ्टिंग हुआ उसका, ये उसका क्या हो गया, उसका शिफ्टिंग। शिफ्टिंग डिपेंड करेगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव एंगल पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो द रेज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो ये क्या है, तुम्हारा नॉर्मल है, ये कौन सी रे, तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है ना, जो रेज तुम्हारी क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एंड विल बी शिफ्टिंग पाथ, पाथ चेंज कर रही है ना। तो जो ये एंगल क्या बोले, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। और एक कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, जब सपोज लाइट इज नॉट डेविएशन, लाइट में डेविएशन नहीं है, वो अपना पार्ट नहीं है, वो इट इज नॉट अ रिफ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे सपोज लाइट तुम्हारा नॉर्मल में है, तो लाइट इधर से आ रहा है, तो नॉर्मल से लाइट तुम्हारा डेविएट नहीं होता, सीधा जाता है, पता है अपने को, है ना। तो ये कंडीशन रिफ्रैक्शन की नहीं है। इसके बारे में, रिफ्रैक्शन है, इट विल ऑलवेज चेंजेस द पाथ, पाथ चेंज करना ही है उसे, है ना। थोड़ा कोई बहुत क्यों ना हो, लेकिन मीडियम चेंज कर रहा है तो इट विल डेफिनेटली चेंजेस इट्स पाथ। मे बी इट विल बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और मे बी इट विल बेंड टुवर्ड्स away from normal. It depends upon the medium how it will be. Now from rear to air to rear to denser, from it will be towards the normal. Again from denser to the here, suppose again the air means denser to rear, again it will be moving away from the normal. तो ये क्या है तुम्हारा, अब यहाँ पे देखो, तो ये एंगल तुम्हारा निकालना है, दिखना है आपको। तो सपोज the angle between the incident ray and refracted ray, incident ray कौन सा है आपका, ये बराबर, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सा, ये। तो ये एंगल क्या कहते हैं अपन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन, विच इज एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल, उसमें भी वही था, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये यहाँ पे ये तुम्हारा क्या इमरजेंट हो रहा है, लाइट क्या रेस क्या तुम्हारी मूव जा रही है। तो अब इसके लिए क्या होगा तुम्हारा, देखो ये दो पैरेलल रेज है, तो ये आर है, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा आर, करेक्ट है, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल्स आर पैरेलल। तो ये आर है, तो फिर क्या है, यहाँ पे लाइट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बेंड अवे जा रहा है, तो इसको अपन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इमरजेंस, इमरजेंस है निकलने वाली रे, इमरजेंस का मतलब क्या है, निकलने रे, तो ये क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ ई। तो ये रे को क्या बोलते हैं अपन, इमरजेंट रे, ये रे क्या होगी तुम्हारी इमरजेंट रेस। समझ में आ गया, कौन से एंगल्स है इसमें, द रेज कमिंग फ्रॉम दैट सोर्स is incident ray and the ray is bending towards the normal or away from the normal depending upon the situations. This is known as the refracted rays. यहाँ पे rays कौन सा है तो आपको नाम दे देंगे इसमें, suppose this is A, B, C, D.
तो उसमें ए और बी कौन सी है तुम्हारी, बोलिए? द रे ए बी इज नोन एज द इंसिडेंट रे, ओके. द रे बी एंड सी रिफ्लेक्टेड रे, एंड रे सी एंड डी इमेजिनरी. समझ में आ गया? वेरी गुड. सेम द एंगल ऑलवेज मेड विद द नॉर्मल ओनली. अपन नॉर्मल के साथ एंगल जो बनता है जब भी अपन गिनते. द एंगल मेड बाय द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, अब इसके लिए नॉर्मल अलग है आपका, है ना. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, अब ये सरफेस रिफ्लेक्शन है ना. द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो सपोज मटेरियल तुम्हारा सेम है, सपोज इफ material is the same and the glass slab is exactly parallel, glass slab exactly parallel होगा, material सेम होगा, तो यहाँ पे एयर में से फिर एयर में जाता होगा, तो वो कंडीशन में क्या होगा, तुम्हारा एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ ई. समझ में आ गया? कब होगा वो? कब होगा? जबकि तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ग्लास स्लैब क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है, सेम मीडियम है ना. तो वो कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो वो कंडीशन में मोस्टली तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस तुम्हारा सेम होता है. तो ये क्या है तुम्हारे यहाँ पे लैटरल शिफ्टिंग है ना. तो यहाँ पे क्या है, हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, है ना. यहाँ पे ये क्या होगा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन. तो इसमें नाम क्या है एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल सी बी, और इसे नाम देंगे अपन ई, देखो, है ना. तो एंगल ऑफ क्या है, सी बी ई इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. समझ में आ गया? इसमें क्या क्या है. अभी इसमें अपन लॉ क्या बताता है, तो क्या है, अभी देखो रास्ता तुम्हारा यहाँ पे दूर से था, फ्रीक्वेंसी सेम है, उतने ही टाइम में जाना है उससे, तो क्या करेगा लाइट, क्या करेगा, शॉर्टकट अपनाएगा. तो लाइट ने क्या कर लिया, यहाँ पे शॉर्टकट से नजदीक से गया, शॉर्टकट रोड से गया और इसमें से बाहर निकल गया, बराबर है. तो ये शॉर्टकट से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड अलग है, दोनों की स्पीड क्या है, अलग है. तो स्नेल्स लॉ यही बताता है. अब इसमें आप फर्स्ट लॉ, इसमें भी वही 3 पॉइंट्स है. कौन से? जैसे कि अपन जो उसमें देखे, किसमें, मिरर में. सेम वे हियर आल्सो फर्स्ट पॉइंट कॉमन है, कौन सा, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर इन अ सेम प्लेन. वो तीनों भी कौन से, एक ही प्लेन में है, बराबर है. मिरर में भी वही था, बराबर है कि नहीं. मिरर में सेम वही इंसिडेंट रे, पहला और तीसरा सेम है, सिर्फ दूसरे में थोड़ा चेंजेस है. वो क्या चेंजेस है बता तुम्हें. तो पहले जो सेम है वो बताता, फिर बाद में क्या चेंजेस है बताता. तो पहला क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन. ये सब प्लेन में तुम्हारे. और क्या तीसरा लॉ क्या है तुम्हारा, देखो, इंसिडेंट रे ये आने वाली और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल यहाँ पे एक राइट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में, दोनों भी नॉर्मल के अपोजिट साइड में है, करेक्ट है. देखो ये नॉर्मल है यहाँ से, तो ये क्या है तुम्हारे इंसिडेंट रे ये साइड में है, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या दूसरे साइड में, एक ही साइड में है क्या है, नहीं, दोनों भी क्या है, फर्स्ट वाला उस जो मिरर में वही था. मिरर में क्या था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल. तो यहाँ पे इंसिडेंट रे का वन साइड है एंड रिफ्रैक्टेड रे का अपोजिट साइड है, बराबर है, ऑफ किससे, नॉर्मल के बीच में से. नॉर्मल का लेफ्ट साइड है, नॉर्मल का राइट साइड है, या तो अप एंड डाउन, ऐसा कैसा भी कर सकते हैं. अभी जैसा मैंने ऐसा रखा तो ऐसा, अप ऐसा रखते हो तो राइट ऊपर और नीचे हो जाएगा, लेकिन अपोजिट साइड में आएंगे. तीसरा क्या है इसमें, द रेशियोज ऑफ, अब यहाँ पे एंगल बन गए हैं, है ना. द रेशियोज ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट. स्नेल्स लॉ. तो ये क्या है तुम्हारा जो रेशियो है किसका, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसे क्या कहते हैं अपन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. तो साइन ऑफ आई क्या होता है पता है आपको, शायद मेरे ख्याल से इसके पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इंटीग्रोमेट्री में. ए बी सी, इट इज एंगल दिस थीटा, देन इन फिगर ऑफ साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, दैट इज साइड ए बी, बाय साइड हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, बराबर है, ए सी, है ना, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पर तो अपन अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, अपन इसको निकालने के लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकली देखने के लिए यूनिट सर्कल निकालते हैं. अपन क्या करते हैं, यहाँ पे से मैं यहाँ पे चॉप रखता हूँ और यहाँ से यूनिट सर्कल निकालता हूँ. कुछ भी एक रेडियस, कोई भी रेडियस, यूनिट सर्कल का मतलब क्या, एक रेडियस उसकी क्या है मैंने 1 लिया, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, कुछ भी मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने क्या करा है, कोई भी एक सर्कल निकाला है ना, जिसकी रेडियस फिक्स है. अभी यहाँ फिगर में आप देखिए, तो मैं फिगर में क्या करता हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ,
है ना, आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मारता हूँ ये ट्रायंगल के यहाँ पर, बराबर। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल यहाँ पे है, तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ परपेंडिकुलर मार रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि साइन ऑफ एंगल आई क्या है, तो सेपरेशन कैसा हो रहा है समझ में आएगा आपको। साइन ऑफ आई ये फिगर में क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल है, दिस इज द रेडियस इज हाइपोटेन्यूस, है ना। साइन ऑफ आई फिगर में क्या हो गया, तो क्या है देखो, ये एंगल आए अपोजिट साइड बाय हाइपो, करेक्ट है। हाइपो क्या है आपकी, रेडियस है ना। फर्स्ट फिगर में साइन ऑफ आई क्या होगा तुम्हारा, अपोजिट साइड में नाम, कुछ नाम दो, क्या कुछ नाम देंगे अपन, क्या देंगे, चलो एक्स वाई देंगे, चलो कोई बात नहीं, एक्स और वाई। तो ये क्या होगा तुम्हारा, एक्स वाई डिवाइडेड बाय रेडियस आर, करेक्ट है। सेम वे छोटा ट्रायंगल नीचे है, इसमें साइन ऑफ आर क्या है तुम्हारा, इसको क्या देंगे नाम, ए बी देंगे, छोटा ए बी, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस है आगे फिर से रेडियस है, बराबर है। तो क्या होगा, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू ए बी बाय आर। तो ये क्या होगा तुम्हारा, रेडियस रेडियस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सेपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्ट इंडेक्स का मतलब क्या है तुम्हारा, कितना सेपरेट हो रहा है नॉर्मल से, कितना लाइन तुम्हारी कितनी दूर जा रही है, हाउ मच फार फ्रॉम द नॉर्मल एट दैट रेशियो ऑफ दैट टू इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस समझ में आया कैसे निकालना है ना। ये दूर जा रही है, क्यों दूर जा रही है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। अदरवाइज ऐसा भी बोलते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, और वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, इसमें जो फर्स्ट मीडियम में आ रही है, क्योंकि क्या है दूर जा रही है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम भी बोलते हैं। अदरवाइज दो हाइजेंस प्रिंसिपल शायद पता होगा आपको, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स भी बोलते हैं, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, इट विल बी रेशियोज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडिंग बाय वेवलेंथ ऑफ सेकंड मीडियम, है ना। जबकि हालांकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने की वजह से क्या करता है, लाइट तुम्हारा क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है, शॉर्टकट की वजह से इट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इज इट क्लियर, समझ में आ गई है, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या, हाँ। टू प्रोसीड नाउ, नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ द सेम अगेन, ये पॉइंट हो गया शायद आपने, है ना। देखिए, तो कॉजेस ऑफ रिफ्रैक्शंस, तो फिर से वही बताया, कॉज शिफ्टिंग देखे अपन, लैटरल शिफ्टिंग देखे ना, तो ये देखा, ये लड़का दिख रहा है ना, तो इसका क्या है, मुंह यहाँ पे के बजाय कहाँ गया, उसका यहाँ शिफ्ट हो गया है, लैटरल शिफ्टिंग हो गया है ना। अपन पिछले फिगर में देखे शिफ्टिंग कैसा हो रहा है, यहाँ पे अपनी फिगर में क्या शिफ्टिंग हुआ है तुम्हारा, देखो इंसिडेंट रे ये थी आपकी, बराबर, हाँ, इमरजेंट रे कौन सी हो गई, ये हो गई, तो शिफ्टिंग कितना हो गया अपना, इतना पार्ट हो गया शिफ्टिंग, है ना। तो इसे क्या कह दिया अपन, लैटरल शिफ्टिंग। लाइट तुम्हारा सीधा आने की वजह से लाइट क्या होगा तुम्हारा, थोड़ा सा उसका पाथ चेंज हो गया, है ना। एक्चुअल पाथ से लाइट का पाथ क्या होगा तुम्हारा, चेंज हो गया, इसे क्या कहते हैं अपन, लैटरल शिफ्टिंग। और बिकॉज ऑफ लैटरल शिफ्टिंग ओनली वी आर फाइंडिंग दिस सच काइंड ऑफ द इमेज। तो इस तरह से आपको इमेज दिखेगी, तो उसका चेहरा यहाँ पे तो दिख रहा है अपने को, यहाँ पे चेहरा दिख रहा है उसका, है ना। तो आदमी कहाँ है तुम्हारा, वो सपोज यहाँ पे उसका नीचे का लोअर पार्ट है। ये क्यों हो गया ऐसा, बिकॉज ऑफ, हाँ, रिफ्रैक्शन तो वही हाई है, और रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या हुआ तुम्हारा, लैटरल शिफ्टिंग। प्लेन अपन क्या कर रहे हैं फिलहाल, तो क्या देख रहे हैं अपन, ग्रास स्लैब देख रहे हैं। ग्रास स्लैब में क्या होता है तुम्हारा, साइज इज, इट इज नॉट मच चेंजिंग, साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, पर शिफ्टिंग होता है, इट विल बी शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। सेम वे इधर भी हुआ है, लैटरल शिफ्टिंग देखिए अपन ने, है ना। ग्लास स्लैब में यहाँ पे देखिए अभी आने वाली रेज ये थी, तो जाने वाली ऐसा थी, और जाने वाली तुम्हारी ये थी, दोनों में जो डिफरेंस आया है इसे क्या कहोगे आप, लैटरल शिफ्टिंग। समझ में आ गया, इज एनी डाउट अबाउट दैट, गुड। नाउ यहाँ पे की पॉइंट्स सेम शायद पता है आपको, वही अपन जो बात कर रहे थे वही बात है यहाँ पर। देखिए, ड्यू टू द रिफ्रैक्शंस देयर इज अ चेंज इन बोथ वेवलेंथ एंड स्पीड। क्या हो रहा है, वेवलेंथ भी चेंज हो रही है, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स, तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, और स्पीड ऑफ द लाइट, पहले स्पीड क्या थी, ज्यादा थी, बाद में की स्पीड क्या हो गई, कम ही, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो गई, बट द फ्रीक्वेंसी और टाइम रिमेन्स द सेम। टाइम क्या है उसका, सेम है। फ्रीक्वेंसी और टाइम का रेशियो पता है आपको, फ्रीक्वेंसी क्या होता है तुम्हारा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम, इसका मतलब क्या, टाइम पीरियड भी सेम है, ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी हमेशा सेम रहेगी, यही बताया किसमें भी,
लाइट का कौन से पार्ट्स, द रिफ्रैक्शन में लो या रिफ्लेक्शन में लो, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। द कलर डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि अपन क्या जैसे कैसे ग्लास स्लैब लिया अपन ने, दोनों भी क्या है तुम्हारे पैरेलल है। अभी लाइट में बहुत से कलर होते हैं, है ना, इसमें दिखने के लिए अपन मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, तो कलर में उसमें क्या चेंजेस नहीं आ रहे, जैसा तुम्हारा कलर था वैसे ही तुम्हारा शिफ्टिंग उसमें आपको दिखेगी। द कलर्स ऑफ लाइट डजंट चेंज आफ्टर द रिफ्रैक्शंस बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रिमेन्स द सेम, फ्रीक्वेंसी उसकी सेम है ग्लास स्लैब में, है ना, इसलिए क्या है तुम्हारे कलर उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट्स इंसिडेंट रेज इज मोर देन दैट द रिफ्रैक्टेड रेज बिकॉज देयर इज अ पार्शियल रिफ्रैक्ट। पार्शियल का मतलब क्या है, अब इंटेंसिटी में फर्क आ रहा है ना, इंटेंसिटी आपने देखे तो यहाँ का इंटेंसिटी और यहाँ का इंटेंसिटी इमेज में देखिए, तो ये चेहरा ये थोड़ा सा फेंट, ये क्या है तुम्हारा डार्क है ना, तो उसकी इंटेंसिटी में क्या हो रहा है तुम्हारा चेंजेस आ रहा है। तो क्या है इंटेंसिटी किसमें सब ज्यादा कब है, जब तुम्हारा रियर मीडियम में जब इंटेंसिटी उसकी लाइट की क्या है ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट क्या कर दिखा है क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर है क्या आपका नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ऊपर का ये इसका फेस क्लियर है, पर अंदर का यहाँ पे इंटेंसिटी का क्लियर है ज्यादा है क्या, इंटेंसिटी इज गोइंग टू फेंटर, है ना, इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही कम हो रही, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही कम हो रही। तो देखिए बिकॉज ऑफ the intensity of the incident rays is more than that of the refracted ray, incident ray की इंटेंसिटी क्या होगी तुम्हारी ज्यादा होगी कंपेयर टू द रिफ्रैक्टेड रेज, बिकॉज द पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल का मतलब क्या है, तो लाइट तुम्हारा पूरा रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है और थोड़ा डिफ्रैक्ट भी होता है, डिफ्रैक्शन भी बताता मैं क्या होता है। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो अभी ग्लास स्लैब ऐसा है ना, आप शायद पानी पे देखे होगे मेरे ख्याल से, पानी पे हमेशा इमेज कभी कभी तुम्हारे को उसका मिरर इमेज भी दिखता है तुम्हारे में, है ना, तो ऑब्जेक्ट है ग्लास स्लैब, तो क्या होता है तुम्हारा लाइट ऐसा आता है, डेफिनेटली तुम्हारा ट्रांसफर में तो ऐसा भी जाएगा और थोड़ा सा ऐसा भी जाएगा, बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, अब ये क्या हो तुम्हारा थोड़ा सा इंसिडेंट रे इतना आ गया, ये इंसिडेंट रे था, तो क्या कुछ लाइट तुम्हारा क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ ट्रांसफर मीडियम में से इधर गया और कुछ तुम्हारा, तुम देखोगे ऐसा ग्लास में भी तुम्हारा कभी कभी आपकी इमेज दिखती है आपको, है ना, और थोड़ा सा ग्लास के उधर भी दिखता है, तो वो क्या उसमें पार्शियली रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्रैक्ट भी होता है थोड़ा सा, तो इसलिए क्या है इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में क्या होगा फर्क होगा, ये तुम्हारा थोड़ी इसकी पूरी इंटेंसिटी है, तो थोड़ा 10% इधर गया तो कितना हो गया तुम्हारा 90% इधर, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी तुम्हारी कम, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब ये पूरा पॉलिश होता तो यहाँ पे 100 तो यहाँ पे भी 100, बट एक्चुअली थोड़ा लाइट एब्जॉर्ब होता है, 100% कभी नहीं आता, ऐसे पता है थोड़ा सा लाइट क्या तुम्हारा मटेरियल भी तुम्हारा एब्जॉर्प्शन का मतलब पता है खींच लेना, तो लाइट क्या करता है थोड़ा सा ये मटेरियल भी क्या करता है खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी में भी क्या होगा तुम्हारा कम आ जाएंगी, जितनी इंसिडेंट की इंटेंसिटी है उतनी रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी नहीं आएगी। पार्शियली एब्सॉर्प्शन, हाँ ये बताया एब्सॉर्प्शन भी होता है ना, तो पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, और एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन यानी खींच लेना, तो लाइट को क्या करता है थोड़ा सा ये मटेरियल जो है लाइट को क्या करता है इट विल बी गोइंग टू एब्जॉर्ब, और एक कंडीशन है इसको डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन की कंडीशन में बताता हूँ मैं आपको, तो डिफ्रैक्शन भी होता है एट द एजेस, एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे क्या होता है तुम्हारा डिफर एक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है डिफर एक्शन, तो डिफ्रैक्शन में सपोज ये लाइट तुम्हारा यहाँ पे एक ये तुम्हारा है मटेरियम, तो इंसिडेंट रे सपोज यहाँ पे है कॉर्नर पे आ गया, तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और डिफर एक्शन भी हो रहा है, तो वहाँ पे और एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, तो वो और डिफ्रैक्शन इज ऑलवेज एट द एजेस, कॉर्नर पे होता है, डिफ्रैक्शन कहाँ पे होता है हमेशा कॉर्नर पे होता है ना, तो वहाँ पे भी लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई। इंटेंसिटी यानी तुम्हारा अब जैसे कि अपन बहुत मोबाइल में ब्राइटनेस बढ़ाते हैं ना, बहुत इंटेंसिटी बहुत ब्राइटनेस ज़्यादा है तो उसको इंटेंसिटी ज़्यादा है, अभी जैसे कि डाइल्यूट, अभी इंटेंसिटी का भी एग्जांपल होता है, जैसे कि एक समझो एक कुछ कलर है कॉन्सेंट्रेशन है, इंटेंसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन समझो इन शॉर्ट, एक कलर है समझो मैंने क्या करा एक पानी में क्या कर दिया मैंने कलर डाल दिया, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बोलते सोल्यूशन पता है डाइल्यूट सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड की इंटेंसिटी ज़्यादा, इसमें इफेक्ट ज़्यादा का, इंटेंसिटी का मतलब उसमें इफेक्ट क्या हो रहा है, जैसे कि अभी सोल्यूशन बना रहा हूँ मैं, एक बीकर में मैंने क्या करा कलर डाल दिया, बहुत डार्क कलर है, तो फिर क्या करा वही कलर में क्या करा दूसरे बीकर में उसमें से आधा कलर लिया और दूसरे पानी में डाल दिया, और पानी में डालते क्या तो क्या होगा तुम्हारा डाइल्यूट होते जाएगा, तो इसका डाइल्यूट हो रहा है, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो रही है इसकी कम हो रही, तो लाइट में कैसे इंटेंसिटी देखो यहाँ पे उसका फिगर इमेज कैसी दिख रही थी,
यहाँ पे भी देखो कोई भी इमेज, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वेरी क्लियर, बट उसकी इमेज कैसी, रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे दिखा देखो, ये कौन सा इमेज निकला है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका चेहरा कितना क्लियर है, और यहाँ पे भी देखो ये आदमी, इसका चेहरा क्लियर है, ये क्लियर है क्या, नहीं, ये लाइट में है क्योंकि रेयर मीडियम में इसकी इंटेंसिटी क्या है, क्लियर है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, फेंटर है ना, दिखने को फेंट दिख रहा है ना, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी प्रॉपर नहीं है, समझा, इंटेंसिटी यानी उसकी लाइट की प्रखरता बोलते हैं, है ना, उसकी रोशनाई, रोशनाई जो है लाइट की, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लाइट तुम्हारा बताया समय, तुम्हारा क्या लाइट क्या और तुम्हारा पार्शली एब्जॉर्ब भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है और रिफ्लेक्ट भी होता है, सेम फिर वही बताया देखो यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट दिया, ये तुम्हारा एक बीम है ना, तो बीम देखे होंगे आपने, बीम का कभी कभी तुम्हारे को ये बीम आपको पानी के अंदर गए तो ऐसा थोड़ा सा क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है तुम्हारी, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, सपोज इसका नॉर्मल पानी है, डेंस है, तो कहाँ गया तुम्हारा, उधर गया, है ना, और ये क्या तुम्हारा उसी टाइम पे तुम्हारा पानी में उसको इमेज भी दिख रही है, आपको इमेज दिख रहा है नहीं, क्या रिफ्रैक्शन दिख रहा है ना। देखिए यहाँ पे वैसे जैसे लाइट आ रहा है और जा रहा है, कंडीशन को तुम्हारी रिफ्रैक्शन की है, रिफ्रैक्शन बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डिफ्रैक्शन का तुम्हारा एट द एजेस पे होता है, डिफ्रैक्शन ऑलवेज ऑन द एजेस। तो यहाँ पे लाइट आ रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट भी हो गया, रिफ्रैक्ट भी हो गया, और तुम्हारा बिखर भी गया, डिफ्रैक्शंस, ओके, ये तुम्हारा डिफ्रैक्शंस में होता है, इसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी तुम्हारी कम होगी। यहाँ पे रिलेशन बताया रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शंस, इसमें क्या है, रिफ्लेक्शन में देखो क्या है, आपने फर्स्ट लॉ तो सेम है, फर्स्ट पॉइंट कौन सा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑर इन अ सेम प्लेन, तो उस और सेकंड पॉइंट में क्या था, फर्स्ट तो दोनों का सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, सेकंड पॉइंट भी क्या है, थर्ड पॉइंट भी क्या है, सेम है, खाली इसमें क्या है, मीडियम तुम्हारा उसमें, अब इसमें रिफ्लेक्शन में क्या होता है, तुम्हारा लाइट बाउंसिंग इन सेम मीडियम, यहाँ पे मीडियम सेम है क्या, नहीं है, लाइट इज ट्रैवलिंग ना डिफरेंट मीडियम, मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे दो मीडियम है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है तुम्हारा, इट विल बी ना वन मीडियम, लाइट आ रहा है और वही मीडियम में जा रहा है, पर यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या, लाइट आ रहा है और दूसरे मीडियम में जा रहा है, और जाते समय क्या कर रहा है, पाथ चेंज कर रहा है ना, तो पर इसमें क्या है तुम्हारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन, यहाँ पे भी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा, देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे भी क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड अपोजिट साइड में, लेकिन डिफरेंट मीडियम में है, वहाँ पे सेम ही मीडियम में था, है ना। तो थर्ड सेकंड पॉइंट के बारे में बता रहा था मैं, है ना, दोनों भी क्या है, और सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, इसमें क्या है तुम्हारा रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, फिक्स है इसमें, है ना, तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू 1 ही है, इसमें कुछ भी लेते हैं सपोज, तो इसमें अपन साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही है, इसका मतलब सेपरेशन है क्या उसमें, नहीं है, इसका मतलब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या है उसमें सेम है, सेपरेशन, इसका सेपरेशन और इसका सेपरेशन भी क्या है, सेम है। अब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं आप सब, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आई कितना हो गया 1, वो तो एक एग्जांपल के लिए बता मैं, उसमें क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेम है, सेपरेशन सेम है, वेलोसिटी सेम है, पर इसमें वैसा हो रहा है क्या, इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा, वेरिएशन आ रहा है ना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी सेम है, हियर फ्रीक्वेंसी आल्सो सेम, स्पीड आल्सो सेम, wavelength also same, here just frequency is same, wavelength is differ, speed also going to differ, तो यहाँ पे क्या है, रेशियो क्या है तुम्हारा, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसका दोनों का रेशियो क्या है, ये इसका बेसिक डिफरेंस है, समझ में आ गया, हाँ, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, नाउ हाँ, यहाँ पे आप जो बोलते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन का, तो यहाँ पे इससे आपको समझ में आएगा, देखो तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है, सपोज दिस इज अ सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस, आप या इंटेंसिटी आप जो बोल रहे थे ना सेम, तो ये सोल्यूशन क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, तो इसका कलर क्या होगा, फेंटर बन गया, इतना इंटेंस है क्या फिर ये नहीं, इसमें और थोड़ा सा पानी डाला मैं तो और फेंट बन गया, इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, कलर की जो इंटेंसिटी है, तो इसमें क्या है, इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते गया, तो उसी तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे डेंसिटी के बारे में बताएं, इंटेंसिटी भी ऐसा ही है, डेंसिटी का मतलब क्या है, दे आर क्लोजली बाउंडेड, मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली बाउंडेड, अब यहाँ पे क्या है, कलर के मॉलिक्यूल्स है, उतना ही कलर है,
कलर तुम्हारा कम है, पानी थोड़ा कम है, जिसका मतलब कलर क्या है, बहुत क्लोज है। अभी क्या करे, तुमने पानी डाला तो कलर को थोड़ा फैलने के लिए जगह मिली, कलर खुला खुला हो गया, दिस इज अ रेयर वन। और थोड़ा पानी डाला और कलर खुल गया, तो यहाँ पे कलर थोड़ा दिख रहा भी नहीं आपको, तो ये क्या है, रेयर वन। जो डेंस का मतलब क्या है, दे वेरी ब्लैक, वेरी क्लोजली बाउंडेड, यानी क्या है, डेंस है ना। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी, और ऑप्टिकल का मतलब लाइट का डेंसिटी है। डेंसिटी तुम्हारा सेम फॉर्मूला वही है, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, मास बाय, वही फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे तुम बोलते होंगे सर लाइट को मास है क्या, वॉल्यूम है क्या, इसलिए क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेटेड टू लाइट के बारे में सोचे, कॉन्सेंट्रेशन, इंटेंसिटी बोलते हैं अपन उसको, है ना। तो इस टर्म्स यूज्ड बाय ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिस्क्राइब द हाउ वेल द मटेरियल्स रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो क्या है, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का मतलब क्या है तुम्हारा, समझ में आ गया, दे आर कोरिलेटेड, दोनों का मतलब भी क्या है, सेम है। तो पासिंग थ्रू इट इज आल्सो नोन एज द एब्सॉर्प्शन ऑफ द मीडियम। तो कितना मीडियम में तुम्हारा एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना खींच रहा है, वो तुम्हारा एब्सॉर्प्शन। समझ में आ गया। इसका इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है, वेरी क्लोजली बाउंडेड। अब जैसा बताया मैंने, एयर मीडियम में क्या है, पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर्स, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है ना। इसीलिए अभी आप अगले लेसन में आप आगे भी देखना है, जैसे कि लाइट तुम्हारा आ रहा है ऊपर से, सनरे से ऊपर से आ रहा है, जैसे क्या है तुम्हारा एटमॉस्फेयर नियर टू अर्थ, एटमॉस्फेयर क्या है, डेंस है ना। ऊपर से लाइट आ रहा है तो क्या, लाइट ऊपर से बेंड होते 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 आप क्या है, अर्थ पे आता है। इसी की वजह से अपन को आगे देखना है। तो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्टार, एपरेंट पोजीशन एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार इज आल्सो गोइंग टू डिफर। एक्चुअली वहां पे नहीं है वो, जहां पर को दिखते हैं उसकी पोजीशन क्या है तुम्हारी, अलग है, लैटरल शिफ्टिंग होता है उसमें, है ना। जैसे कि आपने देखा अभी लाइट में क्या है, शिफ्ट हो रहा है। इसी की वजह से क्या होता है तुम्हारा, जो एक्चुअल पोजीशन और एपरेंट पोजीशन में भी डिफरेंस आ सकता है। वो भी आप आगे देखना है अपने को। देखिए तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, तो क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस, बोलिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोलिए। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। द रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आर ऑलवेज कांस्टेंट। और ये सेकंड पॉइंट को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स ने बताया था। और थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। द नॉर्मल के दोनों भी क्या है, एक दूसरे को अपोजिट साइड है। समझ में आ गया ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, 3 पॉइंट से। अब बेसिकली क्या करते हैं, फोकस अपन इसी को करते हैं, इसको साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, v1 बाय v2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। ये द रेशियोज ऑफ द टू डिफरेंट मीडियम्स, ये क्या तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सेंस लॉ है। फर्स्ट तो सेम है, ऑल आर इन सेम प्लेन, और क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, बराबर है ना। ये तुम्हारे 3 पॉइंट आएंगे उसमें। देखिए नेक्स्ट में, देखिए अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेल्स लॉ, द सेम थिंग अगेन। जो अपन जो देख रहे हैं उसमें का पॉइंट नंबर 2, कौन सा, पॉइंट नंबर 2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस होगा उसको डायमेंशन नहीं होगे, क्योंकि क्या ऊपर का भी नंबर है, नीचे का भी नंबर है, यूनिट जो भी है। तो क्या यूनिट, अभी जैसे कि वेलोसिटी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर पर सेकंड, है ना। अभी जो बताया मैंने आपको, जैसे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। तो साइन ऑफ एंगल आई का रेशियो क्या होना चाहिए, साइन ऑफ एंगल यानी क्या है, पहले आई का रेशियो एंगल है, एंगल का यूनिट क्या होता है तुम्हारा, स्टैंडर्ड यूनिट होता है रेडियन। पहले ही साइन रेशियो में है, एंगल यानी कि अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, मीटर बाय मीटर, यूनिट 0 1 हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे अपन साइन एंगल निकालिए, सपोज ये आई है ना, ये साइड का यूनिट क्या होता है तुम्हारा, ये भी इसका यूनिट भी होता है मीटर, इसका यूनिट होता है मीटर। साइन ऑफ एंगल आई, तो इसका मतलब क्या है, मीटर डिवाइडिंग बाय मीटर, इसको कोई यूनिट होगा नहीं होगा, तो ये भी मीटर, इसका भी यूनिट नहीं है और इसकी भी यूनिट नहीं है, तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। सेम वे द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड डिवाइडिंग बाय मीटर पर सेकंड, ये भी कैंसिल हो गया, यूनिट होगा नहीं होगा, है ना। वेवलेंथ का भी यूनिट मीटर और मीटर, तो वो भी कैंसिल होगा, इसका मतलब इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसको यूनिट नहीं है, इट इज ओनली प्योर नंबर। the numbers that describes how much the light bends and it's entered in the material। तो अभी कितना बेंड हो रहा है, जितना ज्यादा, एक से ज्यादा होता होगा तो बेंडिंग ज्यादा है ना, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और कम होता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू 1, ये आपने को देखने का नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, 1 कब होगा,
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गए, सेम हो गए, तो वो कंडीशन आएगी क्या, नहीं, दिस कंडीशन इज नॉट वैलिड फॉर द रिफ्रैक्शन, है ना। वो कब होगा तुम्हारा, जबकि तुम्हारा नॉर्मल होगा, ये जो मटेरियल है, जो इंसिडेंट रे भी वही है और रिफ्लेक्टेड ये ऐसा है, तो नॉर्मल से लाइट इज गोइंग टू विदाउट बेंडिंग, जब नॉर्मल से आता है जब लाइट तुम्हारा बेंड नहीं होता है ना, तो उसी तरह से सीधा आता है। तो ये कंडीशन में आपने को नहीं देखना है। जब रिफ्रैक्टिविटी इज मोर देन 1 तो रिफ्रैक्टिविटी इज ग्रेटर देन 1, ये अपने कंडीशन में है, तो लाइट का ये यहाँ पे ये आर ज्यादा है और आर तुम्हारा कम है, साइन ऑफ आई इज इंक्रीजेस, द वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। तो साइन ऑफ आई यहाँ पे ये कंडीशन में क्या हो तुम्हारा, रिफ्रैक्टिविटी इज ग्रेटर देन 1। और ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन कौन सी तुम्हारी, यहां से लाइट जा रहा है आपका बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां पे क्या होगा तुम्हारा नेक्स्ट कंडीशन में, रिफ्रैक्टिविटी इज लेस देन 1। रिफ्रैक्टिविटी इज 1 है तो इसका मतलब अपन देख रहे हैं। हाँ, वैक्यूम भी होता है रिफ्रैक्टिविटी विद वैक्यूम एंड एयर इज आल्सो 1.001 003 जो भी है, एक से ज्यादा है, पर कुछ तो कुछ आना चाहिए, एक नहीं आना चाहिए, एक कंडीशन तुम्हारी रिफ्रैक्शन में नहीं आएगी। समझ में आ गया इसका, just it is a numerical value, okay, the ratio is a numerical value, it is a without units and refractivity is always greater than or less than when it is not equal to 1, एक नहीं आएगा। समझ में आ गया बात, एक आता है अपना तो अपना कहीं तो भी गलत हो गया समझ लेना है ना। देखिए द नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला तुम्हारा क्या है, डेंसिटी मटेरियल कौन सा है, मीडियम कौन सा है, लाइट पास हो रहा कौन सा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, है ना। तो सोर्स है अपना, सोर्स तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स अपने इस्तेमाल कर रहे, लाइट ही सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाइट तो अफेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करते तुम्हारा मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, हाउ इट विल बी डेंस और हाउ इट विल बी रेयर वन, है ना। तो सबसे पहले का अफेक्ट करने वाला कौन सा फैक्टर है तुम्हारा, मटेरियल। और कौन सा है तुम्हारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल भी इंसिडेंट, दो रेशियो तुम्हारे सेम आएंगे, है ना, दो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, मटेरियल सबसे ज्यादा इसमें अफेक्ट करेगा। नंबर 1 यहां से यहां पे आएगा, और लाइट तुम्हारा पासिंग फ्रॉम वेयर, लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर और रेयर टू डेंसर, है ना। तो यहां पे तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफेक्ट करेगा। इट इज द रेशियोज ऑफ टू डिफरेंट वेलोसिटीज, इट इज रेशियोज ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन दिया देखो, the ray of light enters from air into the liquid as shown in the figures, then find refractive index of the liquid। निकाल सकते हो क्या refractive index of liquid? आपको शायद साइन के रेशियो ऑफ एंगल्स पता है आपको, साइन 30, साइन 45, साइन 60 पता है कि नहीं है, कि बताना है? चलो कोई बात नहीं, बता दो, सिंपल टेक्निक। आपको इसके पहले भी शायद मैंने बताया था, शायद नहीं बताया क्या, चलो कोई बात नहीं। देखो एक ट्रायंगल याद रखने का, 2 ट्रायंगल याद रखो या 3 रखो, दिखने को नहीं दिखेगा, चलो दिखने को नहीं दिखेगा लेकिन वो होगा। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? 3 है यहाँ पे, बताता हूँ मैं, बोला दिखने को 2 दिखेगा लेकिन तीसरा नहीं दिखेगा। देखो इसमें क्या है, सपोज एंगल दिखे 30, 60, 90, ये क्या है तुम्हारा, सपोज 45, 90, ये क्या है तुम्हारा, ये एंगल तुम्हारा 0 है, ये 1, 1 और सामने की साइड भी क्या है 0, सपोज एंगल ऐसे चिपका हुआ है। ट्रायंगल कैसा है, वो ऐसा नहीं है, दोनों भी साइड क्या है उसके एक दूसरे को चिपके वाले, है ना। तो इस तरह से ट्रायंगल। अब इसमें से मुझे आपको वैल्यूज निकालना है। अब इसमें क्या देखो, ये 1, अब याद रख लो हमेशा 2 और ए √3, 1, 1 √2 और यहाँ पे 1, 1 0। इससे आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज निकाल सकते, याद करने की कोई जरूरत है नहीं। जैसे कि आपको निकालना है अभी इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बोलिए, अरे भूल गए। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा, ये करेक्ट है। तो ये कितना आएगा आपका 60। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, सेम है ना, ये 45 होगा, बराबर है ना, कितना होगा 45। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अपना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, दैट इज फर्स्ट का आंसर क्या है, n इक्वल्स टू साइन ऑफ i बाय, अभी आपने को साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 45। साइन ऑफ 60 की वैल्यू देखो कैसा निकालेंगे, ये फिगर पता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन है, 60 के सामने वाले कौन है, √3 बाय 2। तो यहाँ पे क्या गया, √3 डिवाइडिंग बाय 2। साइन ऑफ 45 के लिए ट्रायंगल देखने का, नीचे का अपोजिट कौन है 1, हाइपोटेन्यूज कौन है √2 1 अपॉन √2। तो ये निकाल दिया अपन ने। तो इसका मतलब क्या है, √3 बाय 2 डिवाइडिंग बाय 1 अपॉन √2, इक्वल ऐसा भी लिख सकते हैं √3 बाय 2 इंटू √2 बाय 2
सॉरी √2/1, तो इसको 2 के लिखता मैं √2 को लिखता मैं √2 इंटू √2 लिख सकता क्या, एक कट कर देता है ना, तो क्या आएगा तुम्हारा √3/2। समझ में आ गया, गुड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड निकालना है। लिक्विड की स्पीड क्या है, जो अभी तुम्हारा रिफ्रैक्टिवनेस है वही लिक्विड की स्पीड होती है ना। अब स्पीड कैसे निकालोगे आप, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, तो क्या है जनरली अपन कंसीडर करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होती है लाइट की स्पीड एयर की कितनी होती है पता है आपको, नहीं पता है तो याद करना है, कितनी स्पीड की लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिक्विड की स्पीड पता नहीं है अपने को, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना। तो आपने पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी इक्वल टू कितना है v1 डिवाइडिंग बाय v2, बराबर है, तो v1 डिवाइडेड बाय v2। तो n की अपने दोनों का रेशियो पता है अपने को क्या है, √3 डिवाइडिंग बाय √2 इक्वल्स टू, फर्स्ट मीडियम कौन सा है तुम्हारा, एयर है, तो क्या करना है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और नीचे का मालूम नहीं वाटर लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो अभी क्या करेंगे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, वाटर की स्पीड कितनी आएगी 3 × 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय √2 डिवाइड बाय √3, करेक्ट है। तो ये 3 को मैं क्या लिखता हूं √3 इंटू, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया फिर √6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ गया तुम्हारा √6 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझे, समझे क्या, देखिए नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, व्हेन द फर्स्ट मीडियम विल बी द वैक्यूम, वैक्यूम एयर नहीं होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। यहाँ पे एयर दिया गया आपके बुक में। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मीडियम ऑफ द रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट्स इन वैक्यूम। वैक्यूम यानी क्या है, जहां पे कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं है। मैं बोला लाइट आ रहा है तुम्हारा, एयर में भी क्या ऑब्स्टेकल्स है, इसलिए आपने लिए अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स आर डिफरेंट, एक्चुअल पोजीशन क्या है डिफरेंट है, एक्चुअल अपरेंट पोजीशन क्या है डिफरेंट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी क्या है लाइट की स्पीड कम हो रही है ना, एयर में भी लाइट की स्पीड क्या एक्चुअली अपन बोलते हैं हमेशा, बट एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ वैक्यूम है। अपन कंसीडर हमेशा यही करते, एयर के लिए स्पीड थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली 2.99 समझो, थोड़ा कम होता है, पर अपन अप्रोक्सीमेटली उतना ही लेते हैं, है ना। तो एयर में लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम होती है। फर्स्ट मीडियम जब अपन वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके साथ जब जो रेशियो आएगा वो क्या होगा तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर भी आएगा आपका, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 1.003 होता है। कितना है, हाँ, तो बोलते उसमें भी क्या है, एक से एक नहीं है, एक से थोड़ा सा ज्यादा है, पर नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1। इसलिए अपन कंसीडर करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अप्रोक्सीमेटली सेम रहते हैं, लेकिन इट इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल। समझ में आ गया। दूसरे मीडियम में आता है, वो कई काफी बुक में दिया होगा, द फर्स्ट मीडियम विल बी द एयर, देन इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, लाइट की है, इसमें वैक्यूम में। दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो रही है, लाइट की कम हो रही है। जब तुम्हारा न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आपको समझना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से कभी कम आया तो आपका आंसर गलत होगा, हमेशा एब्सोल्यूट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे रेशियोज ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट्स इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो भी मीडियम देता है उसका रेशियो यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, करेक्ट है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायमेंशनलेस। कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रहने दो या कोई जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो, इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, डायमेंशन नहीं होगा, बिकॉज रेशियो मतलब दोनों के ऑटोमेटिक यूनिट्स के तुम्हारे कैंसिल हो जाएंगे। इट इज डायमेंशनलेस और न यूनिट्स, डायमेंशन नहीं है उससे, यूनिट्स भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, देखिए लाइट इंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो निकालना है आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालना है। क्वेश्चन सिंपल दिया है, देखो क्या है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फॉर्मूला कितना दिया आपने को 1.5 दिया है। तो और क्या बताया उन्होंने, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ
सेकंड मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम का आपको नहीं भी दिए तो आपको याद करना है। एयर का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना लेना है आपको, वैक्यूम में लेना है ना। सर आपने बोला है सर अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और वैक्यूम का स्पीड अलग है, पर अपन कंसिडर सेम ही करते हैं। हाँ, अरे वाह, बहुत फास्ट निकाल लिया आपने, वेरी गुड। तो ये क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1.5 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड और ए V2 15 टू 30, करेक्ट है ना। तो V कितना आ गया, V2 कितना आ गया फिर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास में की स्पीड आ गई, समझ में आ गया। हाँ, द नेक्स्ट वन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, वेरी गुड, दो मीडियम में है, वेरी गुड। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जब लाइट जाता है, जब क्या कहता है लाइट की पार्ट मल्टीपल टाइम पाथ चेंज होता है। देखो जैसे कि अभी सपोज मैं कंसीडर करता हूँ, आपने शायद देखा होगा लेयर्स फॉर्म होते हैं ना, तो जनरली तुम्हारी ऑयल की डेंसिटी क्या है, लेस देन द वाटर। ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, तो अपन एक समझो बिकर में क्या करता हूँ मैं, सपोज ये बिकर है, तो यहाँ पे बिकर में क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले ऊपर ऑयल लिखता हूँ और नीचे क्या है तुम्हारा, तो यहाँ पे सपोज लाइट आ रहा है, बराबर है, तो क्या होगा तुम्हारा, लाइट क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से बेंड यहाँ पे हुआ, बराबर है, और फिर यहाँ से यहाँ पे और बेंड हुआ, तो यहाँ पे दो बार बेंड हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले निकालेंगे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रेशियो। पहले क्या होगा तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में क्या करें, रिलेशन मार रहे हैं। इसके रेशियोज ऑफ ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और वाटर का कितना है, वाटर का कितना है, ऑयल का कितना है, लाइट तुम्हारा कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। अभी जनरली अपन जो निकालते वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते, क्योंकि फर्स्ट मीडियम तुम्हारा कौन सा होता है, वैक्यूम, सेकंड एयर, और जो आने वाला हो मटेरियल, है ना। तो वहां पे भी आप उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई मटेरियल का दिया होगा और दूसरे का कोई मटेरियल का दिया होगा, समझो लिक्विड का दिया है, ऑयल का दिया है, वाटर का दिया है ना। तो दोनों में क्या करना है अपने को, एयर का निकालो है, जो भी एयर निकालो किसका भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वन, देखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर टू ग्लास इज 3/2 है ना, 1.5 है ना। क्या बताया उसने, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द एयर, तो किसका मतलब क्या है तुम्हारा, लाइट तुम्हारा एयर से आ रहा है, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया आपको, 1.3/2 है ना, 1.5 है ना। तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया है आपने, एन कितना दिया आपने को, 3/2। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर ऑफ फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द ग्लास टू एयर, तो उल्टा जा रहा है। हाँ वेरी गुड। तो क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी देखो पहले क्या है तुम्हारा, यहाँ से लाइट यहाँ जा रहा था, बराबर है, ये आंसर उन्होंने दिया है अपने को, कितना दिया है, 3/2। पूछा क्या है अपने को, जब तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लाइट तुम्हारा यहाँ से अभी ग्लास में से तुम्हारा लाइट निकल रहा है और ये बेंड अवे जा रहा है, तो अब इसके लिए क्या हो गया तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तुम्हारा, चेंज हो जाएगा, 1/रेशियो ऑफ दिस वन। तो कितना हो गया आपका, 2/3 बराबर 0.66, वेरी गुड। शायद आपको पता होगा, शायद जब डिनोमिनेटर में 9 होता तो कैसा डिवाइड करते हैं, पता है ना। हाँ, कोई भी नंबर होता है डिनोमिनेटर में 9 आता है तो सीधा उसका नंबर पॉइंट आगे लिख देने का, जैसे कि इसके बाद 2/3 का मतलब नहीं है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 6/9 आ गए। कोई भी नंबर का जब डिनोमिनेटर में 9 आता है तो क्या करते हैं अपन, सीधा सीधा सिंपल 6 है ना। जैसे कि 5/9 क्या आता है, 0.55555 है, जो भी है, तो इस तरह से अपन निकालते हैं ना। 5/9 कोई भी डिनोमिनेटर में 9 आता है तो सीधा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया नहीं है, जरूरत नहीं थी अपने को। द नेक्स्ट वन, द रिलेशन बिटवीन V U F लैम्बडा एंड F, और बहुत से काफी बुक्स में आपके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए V क्या है तुम्हारा, V इज वेलोसिटी। V क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा, ऐसा हो गया। n क्या है, n यानी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या तो V इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू F है ना। लैम्बडा क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। और म्यू को क्या कहते हैं, बहुत काफी बुक में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। दिस रेशियोज ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ I बाय, पर यहाँ पे बताना है वेलोसिटी के टर्म में, यानी वेलोसिटी 1 डिवाइडिंग बाय वेलोसिटी 2, और बताना है आपको वेवलेंथ के टर्म में, वेवलेंथ 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ 2। फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज में नहीं हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है तुम्हारा, V इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू F।
तो लैम्बडा बदलेगा जो v बदलेगा पर फ्रीक्वेंसी, और वी कैन से द f इज द कांस्टेंट रेशियोज ऑफ v बाय लैम्बडा। f क्या है तुम्हारा दोनों का रेशियो है, f इज ऑलवेज कांस्टेंट। समझ में आ गया है, ये रिलेशन है अपने इसमें। द नेक्स्ट वन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर आर 3/2 एंड 4/3। देखो पहले क्या दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो पहले क्या जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है आपको 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3 दिया है। दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर। फर्स्ट मीडियम कौन सा है एयर, सेकंड मीडियम क्या है तुम्हारा ये पे ग्लास है ना, यहाँ पे लिखो फर्स्ट मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम क्या है तुम्हारा ग्लास है। तो अब क्या निकालना है आपको, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, तो ग्लास की स्पीड दिया है आपने को, यहां पर ग्लास की स्पीड आपने को दिया है, कितना दिया है उसने 2 × 10⁸। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये कंडीशन में क्या करना है आपको, लाइट की स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, एज्यूम नहीं करना है, आपको निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3/2 दिया है, तो फर्स्ट मीडियम आपको समझता होगा सर, मुझे तो याद है ना, पर यहाँ पे निकालना है आपको। स्पीड ऑफ लाइट क्या है पता नहीं है आपको, फर्स्ट मीडियम में पता नहीं है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट इनको जनरली स्पीड ऑफ लाइट को अपन सी से भी लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को कभी कभी काफी बार बुक में सी से भी लिखते हैं, c डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। तो 2 कैंसिल, तो c कितना है तुम्हारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई तुम्हारी, आपको पता था लेकिन फिर भी निकालना है, क्योंकि कभी कभी क्या है वांटेडली ये नंबर अलग देते हैं, तो आपको ये कंपेयर करके ये निकालना है, क्यों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है यहाँ पे, है ना। इसका इतना होगा इसमें, तो उसका उसमें कितना होगा, इसको बोलते हैं अपन रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो अभी यहाँ पे ये इसमें बराबर आ गया अपना। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3, फर्स्ट मीडियम क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर ही दिया है, तो एयर की स्पीड अपन निकाल लिया अभी, बराबर है ना। तो फिर क्या करना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ वाटर, है ना, लाइट था कितना है तुम्हारा है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, ये पता नहीं है आपने को निकालना है, इक्वल टू कितना है 4/3। तो कितना होगा तुम्हारा 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू क्या है वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो 4 1 4 4 2 8 2 आ रहा है ना बेटा, वेरी गुड, 2.25 मीटर पर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन देखिए, in figure the ray of light undergoes the refractions from the medium A to the medium B. If the speed of light in medium A is v, जो फर्स्ट मीडियम की दिया लाइट की स्पीड ऑफ लाइट, इसकी दिया स्पीड कितना दिया आपने को v दिया है, then the speed of light in medium B will be, तो स्पीड निकालना है आपको, क्या d आंसर d आ रहा है क्या, कैसे आ रहा है 1/2 v/2। चलो चेक करेंगे आपका आंसर सही है क्या गलत है, मुझे नहीं लगता है कि आपका सही होगा। देखिए तो क्यों नहीं होगा सही, तो क्या है मैंने कहा स्पीड का मतलब क्या है तुम्हारा, स्पीड का निकालना है, इसका मतलब रेशियो ही निकालना है आपको, बराबर है। तो क्या निकालना है आपको, इनडायरेक्टली क्या निकालना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, साइन ऑफ आई बाय, तो साइन ऑफ आई कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पर, आर कितना हो गया 60, तो साइन ऑफ 30 बाय ट्रायंगल बताया था मैंने आपको, याद हो गया ट्रायंगल 30 60 90 1 2 √3, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, बराबर। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, है ना। तो रूट ये क्या होगा तुम्हारा कैंसिल, तो कितना आ गया 1/√3, है ना। तो ये फर्स्ट की क्या थी तुम्हारी स्पीड v1 थी क्या, तो सेकंड की तुम्हारे को निकालना था v2 निकालना था, v1 दिया था आपको, है ना। तो कितना है तुम्हारा v2 कितना हो गया फिर √3 × v, तो क्या आएगा आंसर b क्या a ना, √3 × a। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। द नेक्स्ट वन देखो, क्या पढ़े आज अपन ने, इसमें समरी में थोड़ा देख लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लाइट ऑलवेज पाथ द कन्वीनियंट पाथ, क्या करता है लाइट, क्या कन्वीनियंट पाथ देखता है उसका, है ना। इट विल फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट वे बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी as well as the wavelengths are going to change but frequency is always constant. The terms and laws क्या है देखे अपन इसमें, कौन से टर्म देखे अपन, वेलोसिटी के बारे में देखे, है ना। स्पीड ऑफ लाइट देखिए अपन, स्पीड ऑफ लाइट और कितना है तुम्हारा हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है तुम्हारा, रेशियो साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड वेलोसिटी 2, लैम्बडा 1 डिवाइडिंग बाय लैम्बडा 2, एंड एफ इज द रेशियो ऑफ वी बाय लैम्बडा इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। ये देख लिया अपन ये टॉपिक में। तो अभी बाकी के क्वेश्चंस, होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए आपको, शायद मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर पाओगे होमवर्क के क्वेश्चंस, तो करोगे आप? चलो मैं होप करता हूँ आपको मैं सिंपल फॉर्मूले बता दूं क्या कैसा करना है क्या नहीं। देखिए आप क्वेश्चन करो, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन 3, फाइंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी क्या करना है, फर्स्ट मीडियम क्या लेना है आपको, एयर लेना है, मीडियम विच इज लाइट इज ट्रैवल द स्पीड ये दिया है, तो क्या है दोनों का रेशियो ले लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग है तो देखेंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल ही है सब। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बता सकते हैं अभी अपन देखे, है ना, बार बार वही देखे अपन। The absolute refractive index of the medium A and B is 2 and 1.5 respectively. Find the speed of light in medium 2, वो भी निकाल सकते हैं, 3 into 10 raised to 8 करके निकाल देना है, निकाल सकते हो है। देखिए नेक्स्ट वाला और क्वेश्चंस क्या है। The answer to the following questions, the water is refractive index is 1.33 and रेशियो दिया है उसका, है ना, किसका किसका रेशियो दिया है उसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर, सॉरी वाटर है ना, वाटर, मैं वो ग्लास लिखा वहां पर, एयर एंड वाटर, एंड अल्कोहल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल एंड एयर, ये दिया है आपको 1.36, विच ऑफ द टू मीडियम्स आर ऑप्टिकल डेंसर। डेंसर कौन सा होगा इसमें बोलिए, ये तो ओरल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, अल्कोहल डेंसर है क्या, करेक्ट है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्रेटर है। गिव रीजंस ऑफ योर आंसर, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर, दैट्स व्हाई इट विल बी द डेंसर वन। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द पाथ रेज ऑफ द पासिंग थ्रू द ऑप्टिकली फ्रॉम वाटर टू द अल्कोहल, वाटर से अल्कोहल में जाना है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है, तो का बेंड कहां होगा तुम्हारा, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, वेरी गुड। द स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द अबव केस, सेम, द रेशियो ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्लियर। द नेक्स्ट वन देखो, हाँ ये रहने दो, just before setting the sun appears to be the elliptical and this happen because of, तो नहीं रिफ्रैक्शन ही, रिफ्रैक्शन है ना, करेक्ट। The next one, the ray of light travels in the air is incident on the plane surface at the transparent mediums, the angle of incidence is 45 degrees and the angle of refraction 30 degrees, find the refraction, sin 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 है ना, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 और √2, एक √2 कैंसिल, है ना, तो √2 आएगा, √2 का वैल्यू कितना है 1.413, वो आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हो ना, इजी है ना बहुत। देखिए स्टेट द स्नेल्स लॉ, क्या है स्नेल्स लॉ, क्या है, sin I by sin of r, when the ray of light traveling in the air enters the obliquely into the glass slabs, it's observed that the ray of emergence parallel to the incidence ray, but the shifting is side, है ना, आपको लाइट क्या हो रही, शिफ्ट हो रही थी, निकाले थे ना, ड्रॉ द रे डायग्राम, आपको वही निकालना है, ड्रॉ करना है, यहाँ से ये सीधी जा रही है और यहाँ पे क्या हो तुम्हारी, यहाँ से यहाँ पे जा रही है, दोनों का शिफ्टिंग, लैटरल शिफ्टिंग बताना है, बता सकते हो। देखिए नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे, if you have any doubt related to today's topic you can ask any times, okay, anyone having doubt, shall we wind up, okay, thank you.